Okay, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, we will review what we have learned at this stage, what we cover up, we try to understand in our software. In lesson 1, we try to see that how our software is important, how is it time efficient, and how it can deal with the data. And you will slowly see in our coming lecture how R can deal with it. Only one Excel sheet we will make, we will do statistical analysis, and we will make our graphic from single sheet. And then the structure of our software, we see that how R operates. R operates in 4 window. Window 1, you have to write command. Window 2 is the mindset of our software. And window 3 is where command run or error shows. And window 4, packages library of R is present, where all packages are installed. Third-party packages you have to install here. Then package and function in our ISM, we see that for every function you need a package. First of all, you have to install package, then you can perform any function in R. Without package, R will not work and will not perform any function. Types of packages are 2 types. First, when you install the R software, then the package already present in its library are called built-in packages, and that package you have to install are named third-party packages. Then we see that how we can install packages. We can install packages in window 4 by install button and by command in window 1. After installation of package, then step start, you have to activate package. Package already present in the library, but you did not activate that package, or will not work, and it will give you error that I could not find a function. Then this was the lesson 1. In lesson 2, we see that how we can make working directory. I described you in to yesterday lecture that working directory develop your connection of our software with your folder that contain your data files and R script. Then we see that how we can import CSV file, how we can import Excel file data in our R software. After when you have did your work in statistical analysis and making summary, you can import and export our data. Welcome, Dr. Shasta Almas. You are listening to me. Walaikum Assalam. Thank you so much. Yes. ओके डॉक्टर शस्ता अल्मा साहब ने आपका 2 दिन इंतजार किया, पता नहीं आप मसरूफ थी, शायद आपने ज्वाइन नहीं किया. ओके सॉरी, मैं ईमेल देख नहीं पाई क्योंकि वीकेंड था और मैंने स्विच ऑफ किया हुआ था सेल फोन. सो ओके आज मैंने ऑफिस ज्वाइन किया तो मैंने आज ही इसको. ओके ओके थैंक यू सो मच फॉर कंसीडरिंग. ओके थैंक यू. Okay, so I repeat for Dr. Shasta Alma, so he was not present in 2 previous lesson. So in lesson 1, I said that we discussed the importance of our software, how our software is important and how it can efficiently deal with the data set. Second, we discussed the structure of our software, how our software operate in 4 windows. Then package and function in our software. For every function, you need a package. You have to install package, then R perform function. R cannot perform any function until you have to install that packages. And then the types of packages, we say that R has 2 types of package, built-in and package and third-party package. The package that when you install our software and package present in its library are called built-in packages, and that package you have to install are third-party packages. Then how you can install package? You can install package by installation button on window 4, and you can also install package by command. Then the activation of package. After installation of package, then you have to activate it. You can activate package by clicking on the package in window 4 or by library function in window 1. In lesson C, this was our first lesson, and in our lesson 2, we see that how we can make a working directory. I said that a working directory is your connection
between the R software and connection between the folder where your R data file and R script file are present. Then is the second say we seen that how we can import and export our data file in R. We can import our data as a CSV file. We can import our data as a Excel file in R software. And similarly, we can, after doing statistical analysis and different summary function, we can export our data as a CSV file, as a Excel file. Then we see that when making, you have made graph, now you want to export the graph. So you can export your graph as a PNG, you can export your graph as PDF, and then you can see that you can combine multiple graph on a single page. So this different journal have a very limited space. So they said that you combine different graph on one page. So you do not need any manual working to addition of different graphics. So by commands, you can combine different graph into one page. Then is the save and retrieve session. You did all your working, and now you can want to save this all that working. So you can save all your session in R, and you can use this session in the next day or in new R script. So this was our lesson 2. So today lesson 3 is very, very important to understand your data and to deal with your long data easily in R software. In this lesson, we will try to understand that structure of data. So all types of data comprise of 2 sections: dependent variables, and the second one is the independent variable. So independent variables are actually your treatments whose effect you are going to check on other parameter. So we say that dependent and that is independent. Like independent variables like fertilizer effect, you can check variety effect. These are all your independent, and then the plant height and age, and you can say the number of tillers, and all parameters that you measured are the dependent variables, and that the effect you are going to check are independent variable. So you have to specify your structure of data in R software. R do not know that what's your dependent variable, what your independent variable. And Dr. Isha, you have understand that one structure of data. Yes, sir. Yes. Can you please explain structure of data? What means dependent और independent variable? आपका जो भी डाटा है वो 2 हिस्सों पे डिवाइड होता है. किसी किस्म का भी डाटा है आपके, जो एक वो होता है जिसका आप इफेक्ट चेक करने जा रहे हैं, दूसरा वो है जिन पे इफेक्ट चेक होने जा रहा है. मतलब है जैसे मैंने आपको फर्टिलाइजर की मिसाल दी, वेराइटीज की मिसाल दी आपके पास, तो ये आपके पास है, इनका इफेक्ट चेक करना है प्लांट हाइट पे, आपके पास नंबर ऑफ टिलर्स पे. टेम्परेचर भी इंडिपेंडेंट पे जाएगा. हाँ, वो आपके इंडिपेंडेंट है. जो आप मेजर नहीं करते अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो आपके पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जो आप मेजर कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल. तो डॉक्टर मजीद साहब, can you please explain dependent or independent variable? Hello. Yes, sir. Repeat again, please. Yes. डॉक्टर मजीद साहब, मैं ये कह रहा था कि डाटा कोई भी किस्म का आपके पास दुनिया में जो डाटा होता है वो डाटे के 2 हिस्से होते हैं. एक होता है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल वो हैं जिन पे आप इफेक्ट चेक करने जा रहे हैं, यानी प्लांट हाइट है, नंबर ऑफ टिलर्स हैं, जो चीज आप मेजर करेंगे वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल. और जिनका इफेक्ट यानी फर्टिलाइजर है, वेराइटीज है, वो सारे आपके पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो आर को ये समझ नहीं लगती कि कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं. तो आर में जाके आपने उसको बताना होता है कि ये आपके डिपेंडेंट है, ये आपके इंडिपेंडेंट है. जब तक आप स्ट्रक्चर को सही नहीं करेंगे आर सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप बाकी एनालिसिस या स्टैट या ग्राफ नहीं लगा सकते. तो ये लोग मतलब इस पॉइंट को नहीं समझते, लोग डायरेक्ट ग्राफ बनाना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट स्टैट लगाना शुरू कर देते हैं डाटा पे आर के थ्रू. तो यहाँ पे जाके मेन आपके पास गलती होती है. तो सबसे मेन चीज, जब आप डाटा इंपोर्ट कर लें तो सबसे अगला स्टेप यही है कि आप अपने स्ट्रक्चर ऑफ डाटा को सही करें.
डॉक्टर मजीद साहब आपने आई थिंक अंडरस्टैंड सर किया? कि ये जो स्ट्रक्चर, सॉरी आई जी 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 डॉक्टर इरशाद साहब। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें सब सॉफ्टवेयर में ही बताना होता है कि हमारा इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। लाइक कि हम एसपीएसएस की भी बात करें तो वहां पे भी हम अपनी वेरिएबल्स को कमांड दे रहे होते हैं कि ये हमारा डिपेंडेंट एक्स है और ये वाई है। सो हम्म। ये चीज तो हमें कैटेगराइज करनी होती है हाँ, ना कि हम कर क्या रहे हैं, इसको किस पे मैयर। आप किस पे मेजर कर रहे हैं, और आर के अंदर इसको बाय कमांड हम देखेंगे। बाज कुछ सॉफ्टवेयर हैं उसमें कुछ आपके पास कॉलम्स बने होते हैं कि आप इधर डिपेंडेंट डालें और इधर इंडिपेंडेंट डालें, बॉक्सेस बने हाँ होते हैं, एग्जैक्ट बॉक्सेस बने होते हैं। लेकिन हमने आर में सिर्फ उसको बाय कमांड हमने बता देना है कि आर भी इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करता, उधर तो हम बॉक्सेस में डालते जाते हैं, इधर आप कमांड के थ्रू हम उसको डिफाइन कर देंगे कि ये डिपेंडेंट चीज है, ये इंडिपेंडेंट चीज है, तब जाके वो उस चीज को आपके पास करेगा। डॉक्टर मजीद साहब ये क्लियर है आपको? राहिल भाई? सर इंडिपेंडेंट जो होती है ट्रीटमेंट है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। यस यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इसमें एक चीज की कंफ्यूजन है कि जो एक्स वाई होता है उसमें बार के अंदर वो जो एक्स शीट है, जी जी। एक्स, तो एक्स में ट्रीटमेंट एक्स में आपके, एक्स में डालेंगे या हमेशा वेरिएबल? नहीं, एक्स में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपका, जो आपके पास नीचे एक्स दिया होता है, वाई हमेशा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ग्राफ में। आपके वाई में एक्स, डिपेंडेंट होता है और एक्स में इंडिपेंडेंट होता है। नहीं एक्स पे आप, हाँ एक्स पे इंडिपेंडेंट और वाई पे डिपेंडेंट, यानी आपके फर्टिलाइजर आपके पास एक्स एक्सिस पे आएगी और प्लांट हाइट जो होगी वो आपके पास वाई एक्सिस पे आएगी। राहिल भाई आपको क्लियर है? यानी प्लांट के पैरामीटर वाई एक्सिस वाई एक्सिस पे आएंगे आपके पास, बिल्कुल ऐसे ही। पे। तो सर जी जी प्लांट बिल्कुल की बिल्कुल। हाइट लेंथ रूट ये शूट वो एक्सेस पे आएंगे और जो हम ट्रीटमेंट देंगे वो एक्सेस में आएंगे। हाँ वो एक्सेस पे आएंगे, ट्रीटमेंट हमेशा हमें आपके एक्सेस पे आएंगे, और जो आपके पास जो चीज, ये ध्यान में रखें, जो चीज मैयर करेंगे आप उसको हमेशा वाई एक्सेस पे जाएगी, और जो चीज मैयर नहीं करेंगे वो आपके पास एक्स एक्सेस पे है। यानी फर्टिलाइजर तो हम अप्लाई कर रहे हैं, मैयर तो हम प्लांट हाइड कर रहे हैं या दूसरा डाटा जो भी आप मैयर करेंगे। आप जैसे वो डॉक्टर इशरत बता रहे थे, प्रेशर जो है, आप प्रेशर तो मेजर, मतलब अगर आप प्रेशर मैयर कर रहे हैं तो फिर वो वाई डिपेंड, अगर आप प्रेशर का इफेक्ट चेक कर रहे हैं, जो चीज आप मेजर कर रहे हैं उसको ध्यान में रखें, हमेशा वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जो डोजेज राइट? होंगी हमारी वो वो एक्स एक्सेस पे होगी और जिस पे डोजेज दी जाएगी वो वाई एक्सेस पे होंगी। वाई एक्सेस पे आएगा, हमेशा यही चीज हो। मैं मतलब जो चीज मैं बता रहा हूँ कि आप मेजर नहीं कर रहे हैं, मतलब है वो हमेशा एक्सेस जिसका इफेक्ट चेक कर रहे हैं, और जो उसके। राहिल भाई ये क्लियर हो आपको? ओके गुड। ओके, उसके बाद ये हम देखेंगे कि हम हाउ वी कैन करेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा, हाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन आवर सॉफ्टवेयर। And second is we see that basic command in our head command, tail command, summary command, columns, names, how we can see that these all things in R. So when we have import the data, now we can do this a head, tail, summary, and columns name. All function can be performed in R software. Then the very important thing is subsetting in R by category and value. So मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपको जब एक शीट आपके पास, हमेशा आपको आर में एक शीट चाहिए, बाकी शीटें नहीं चाहिए। अब आप कहते हैं कि मुझे ये वाली ट्रीटमेंट चाहिए, ये वाली ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मतलब आपके पास दो इरिगेशन है, इरिगेशन 1 और इरिगेशन 2 का डाटा एक ही शीट में है, लेकिन आप उसको चाहते हैं कि आप इसको, हम मुझे एक इरिगेशन में सारे एनालिसिस करने हैं या मुझे एक इरिगेशन का ग्राफ बनाना है, तो हम आर में एक और फाइल बना लेंगे जिसमें आपकी सिर्फ एक इरिगेशन होगी, इरिगेशन फर्स्ट होगी, इरिगेशन 2 का डाटा हम साइलेंट कर देंगे, अब वो डाटा शो नहीं होगा जो आपकी नई फाइल बनेगी। यानी सब सेटिंग से मुराद ये है कि आप आर के अंदर फाइलें बना लेंगे। वो जो आप एक्सेल में काम करते थे, सारे आपको एक इरिगेशन का डाटा चाहिए होता था तो आप बाकी दूसरी इरिगेशन डिलीट करते थे, एक नई शीट बनाते थे। अब वो आपको आर में करने की जरूरत नहीं है, आर आपके लिए ये काम करेगा कि वो शीट खुद बनाएंगे हम आर के अंदर। आपकी ओरिजिनल फाइल वैसे सेव रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, आर के अंदर एक कॉपी बन जाएगी नई फाइल की। तो इसमें आप वैल्यूज को भी कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं जी, ये जो मेरा टेम्परेचर आ रहा था ये 35 से ज्यादा होना चाहिए था, दो चीज। अब जैसे आउटलेयर्स की बात कर रहे थे, या किसी डाटे को आपने स्किप करना है, कोई एक ऑड वैल्यू आ गई, तो आपको मैनुअल ऐड करने, एडिटिंग की जरूरत नहीं है,
आर आपके लिए उस वैल्यू को साइलेंट कर देगा और उससे ज्यादा का डाटा आपके लिए सिलेक्ट करेगा। तो आपकी मैनुअल एडिटिंग से जान छूट जाएगी। मेन आपके पास आप सब फाइल भी बना सकते हैं आर के अंदर, और अपनी वैल्यूज की रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको यहां से यहां तक चाहिए। सब सेटिंग थोड़ी सी मैं जब प्रैक्टिकली करूंगा तो आपको मजीद समझ आ गई, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट आप ले लें यहाँ पे जस्ट आप। डॉक्टर शाइस्ता, आपको ये समझ आया? आपको मैंने क्या कहा कि सब सेटिंग से क्या मुराद है? सब सेटिंग में आपने ये बताया कि बिलफर्स के मैं एक उस पे काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत सारे वेरिएबल्स भी चाहिए, तो मेरे पास डिफरेंट मतलब फाइल्स अगर ओपन है तो मैं ये कर सकता हूँ कि उन सबको एक ही फाइल पे भी मैं कर सकता हूँ और बाकियों को मैं ऑफ कर सकता हूँ। एज पर माय अंडरस्टैंडिंग मुझे ये समझ आई है कि मतलब मुझे जी बहुत सारे जैसे मेरी वेरिएबल्स हैं, मैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स मुझे चाहिए, जी रिक्वायर्ड है मेरी, ठीक है, जिस जी पे जी। मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अगर इंक्रीज हो रहे नहीं हैं कि ये वाला वेरिएबल भी ऐड कर दूंगी भी, सो नहीं मैं नहीं, एक ही फाइल पे भी वो काम कर सकता हूँ। कर सकते बिल्कुल। ये ऐसा आपके ही। पास बिल्कुल ऐसे आपके पास एक डाटा फाइल है जिसमें हमारे पास पंजाब का भी डाटा है, बलूचिस्तान का भी है, सिंध का भी है, सरहद का भी है। अब मैं चाहता हूँ कि कम्युलेटिव है मेरे पास। कमुलेटिव डाटा मेरे पास एक ही फाइल में प्रेजेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बलूचिस्तान के डाटे पे काम करूँ। तो हम हम्म। रूटीन में क्या करते हैं कि बाकी सारा डाटा डिलीट करते हैं, बलूचिस्तान के डाटे की एक अलग फाइल बनाते हैं। इसमें आर में आपको किसी चीज को मैनुअल डिलीट या ऐड करने की जरूरत नहीं है। आर आपके लिए बलूचिस्तान के डाटे को अलग कर देगा कि वो कहेगा अब ये बलूचिस्तान का अलग हो गया, आप इसके स्टैट लगाएं या इस पे ग्राफ बनाएं, जो करना है आपके लिए वो बलूचिस्तान की फाइल आर के अंदर ही बन जाएगी आपके पास। आपने अच्छा, वैसे इस पे फॉर एग्जांपल जो मुझे समझ आ रही है कि जैसे कि एक्सेल में है तो मुझे वहां से फिल्टर करके उसको निकालना पड़ेगा और वो मेरे पास आएगा। तो इसमें ये होगा कि वो खुद ही एक सेपरेट फाइल बना के और उसमें डेटा शो कर देगा, ऐसा होगा? ऐसा ही होगा बिल्कुल। वो आपको फिल्टर लगाने या उसको डिलीट करना किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो फिल्टर हम आर के अंदर ही लगा देंगे। वो आर उसको मतलब ठीक एक चीज को कंट्रोल को वो अलग कर देगा कि बलूचिस्तान के डाटे को अलग करे, बाकी 4 प्रोविंस के डाटे को वो अलग कर देगा आपके पास। आपको जो मतलब डाटा चाहिए, यानी आप आपके पास 10 साल का डाटा है, 50 साल का डाटा है, मुख्तलिफ सिटीज का डाटा है, मुख्तलिफ कंट्रीज का डाटा है। आर आपको ये ऑप्शन देता है कि आप जिस डाटे को चाहते हैं तो आप उसको वो आपको अलग कर, आपको मल्टीपल शीट बनाने की जरूरत नहीं है। यानी हर सिटी के लिए फिर हर प्रोविंस के लिए आप एक्सेल की शीटें बनाते रहे, तो उसमें ये आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो आर आपके लिए ये खुद करेगा, ये सारी चीजें आर के अंदर ये पॉसिबल है। डॉक्टर मजीद साहब आप मेन बस जो इसकी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमें मल्टीपल शीट पे नहीं जाना पड़ेगा, एक ही शीट में ये हमें जो हमारा रिक्वायर हमारी वो दे देगा बिल्कुल ऐसा ही जो करेगा। मतलब वो हमें सिर्फ आपका रिक्वायर। वो बिल्कुल वो आपके लिए सारी मल्टीपल शीट की आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी। आप सारे डाटे को एक ही शीट पे रख सकते हो, और आर के अंदर आप जितनी भी फाइल बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो मजीद साहब आपने इस बात आप को। जी जी। जी जी सर, आप ये कह रहे हैं कि आर में अगर 50 साल 100 साल पूरे कंट्री का डेटा पड़ा हुआ है और आप एक डिस्ट्रिक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, तो हम्म विच टाइप ऑफ डेटा एंड विच कैटेगरी ऑफ डेटा और विच वैल्यू यू वांट टू हम्म सेलेक्ट, आर विल हम्म सेलेक्ट और चूज दैट डेटा, दैट इज द सबसेटिंग ऑफ आर। हम्म एंड वो उस एरिया से वो चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। आर में सिलेक्शन होती है इसकी हम्म। सेटिंग में कि हम जो रिक्वायर्ड डेटा चाहते हैं वो करेगा, बाकी को छोड़ देगा। बाकी को छोड़, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल आप सही समझे हैं मतलब। तो मैंने जो पहले दिन बात की थी कि आपके मल्टीपल शीट से जान छूट जाएगी, आपको शीटों की जरूरत नहीं है, कोई मैनुअल एडिशन की। आप किसी वैल्यू को स्किप करना चाहते हैं तो आप उस वैल्यू को साइलेंट कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक आपका डाटा चाहिए। डॉक्टर इशरत, आपने अंडरस्टैंड किया सब सेटिंग को? आप कंसेप्ट ले लें, बाकी जब यस सर। प्रैक्टिकली करेंगे तो आप मजीद देखेंगे कि वो आप एक लाइन के कमांड के अंदर वो कैसे एक नई फाइल बना देगा आपके ठीक लिए। ठीक है सर। ओके। उसके बाद है कॉलम सिलेक्शन, डिलीशन, चेंज ऑफ कॉलम नेम आपके पास। तो बाज देखें आपके डाटे में 100 कॉलम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ मतलब 5 कॉलम पे काम करूं। यानी ये मेरा एक पेपर है, ये मतलब है ये 5 पैरामीटर मैं इस पेपर में इंक्लूड करना चाहता हूँ, या 5 पेपर इस स्टडी में इंक्लूड करना चाहता हूँ कॉलम्स को। बाकी कॉलम मैं डिलीट कर दूं, तो ये आपको आर में आप उसको डिलीट कर देंगे। बाकी सारे कॉलम जो आपको सिलेक्शन ऑफ कॉलम चाहिए, यानी पहला कॉलम चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए, पांचवा चाहिए, तो हम वो सिलेक्शन करके उसकी एक अलग फाइल बना देंगे। तो आप जैसे एक्सेल में हम रूटीन में करते थे, हमें कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, इस कॉलम को उधर लेकर जा रहे हैं, इस कॉलम को इधर लेकर आ रहे हैं, उसके लिए नई फाइल बना रहे हैं, तो आर में आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वो आर आपके लिए उसको आपको कॉलम की सिलेक्शन कर देगा, कोई कॉलम आपको डिलीट करना है वो कर देगा। आपका ओरिजिनल फाइल सेम रहेगी, बल्कि वो आर के अंदर एक नई फाइल बन जाएगी जिसमें आपके पास वो सिलेक्टेड कॉलम्स आएंगे आपके पास। अंडरस्टैंड किया आपने इस बात को? यस सर, आप ये कह रहे हैं कि आर जो है इसके अंदर सिलेक्शन है, डिलीशन है। अगर विच कॉलम हम चूज करना चाह रहे हैं या विच रो ऐड करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं, आर उस कॉलम को डिलीट कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है, चूज कर सकता है, फिल्टर कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है, उसी कॉलम के एनालिसिस कर सकता है और उसमें कॉलम या रो को ऐड कर सकते हैं हम लोग। ऐड कर सकते हैं, वो आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, नई शीटें बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर इस कंसेप्ट को सीख जाएंगे तो आपके पास कोई नई कॉलम्स या नई चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम एक और चीज देखेंगे कि आपके पास रीअरेंजमेंट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। बस आप और जब आप डाटा फर्टिलाइजर की टाइप्स है, नाइट्रोजन यूरिया है, फास्फोरस है, पोटाश फर्टिलाइजर है। अब आप ग्राफ जो बनाना चाह रहे हैं, आप कहते हो पहले नंबर पे यूरिया है, दूसरे नंबर पे फास्फोरस है, तीसरे नंबर पे पोटाशियम है, या आप मुख्तलिफ ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हो, नीचे एक्स पंजाब सिंध सरहद। तो आप किस तरह यानी कंट्रोल बाजू का चाह रहे हो, तो आप कंट्रोल शुरू में आ जाए, फिर मेरा दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, फिर चौथा लेवल। तो आप जिस किस्म की अरेंजमेंट करना चाहते हैं अपने ट्रीटमेंट्स की, आर बाज चीजों को अल्फाबेटिकली लेता है कि वो अगर आपकी ट्रीटमेंट ए बी सी डी है तो वो उसको ए बी सी डी कर देगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि सी पहले है, ए बाद में है, बी बाद में है, सी एक्स एक्सिस ग्राफ पे अंदर। तो आप अपनी ट्रीटमेंट्स को रीअरेंज कर सकते हैं। आप रीअरेंजमेंट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट्स आप कर सकते हो। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, फिर आप मजीद इसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद आपके पास है, आपके पास दो आपके पास डाटा सेट आपने इंपोर्ट किए या बनाए। अब उसमें चाहते हो कि आप एक एक कॉलम को दूसरे, अब मैं जैसे हम एक्सेल में कल देख रहे थे, हमने प्लांट का डाटा लिया और आपके पास सॉइल का डाटा लिया, या इसी किस्म के दो डाटा सेट पंजाब का है और सिंध का है। तो उसमें से आप कॉलम मिलाना चाहते हो दोनों डाटा सेट के, तो आप उसमें कॉलम ज्वाइंट भी कर सकते हो, रोज भी ज्वाइंट कर सकते हो। आप 10 रोज चाह रहे हो ऊपर वाली हैं, 10 रोज किसी और डाटा सेट की हैं, तो आप आर में कॉलम बाइंडिंग भी कर सकते हैं और रो बाइंडिंग भी कर सकते हैं। आप कि दो डाटा सेट के आपके कॉलम्स को भी मिला सकते हैं और दो डाटा सेट के आप रोज को भी एक ही फाइल में मिला सकते हो। यानी उसके लिए भी आप मतलब आपने मिसाल के तौर पे समझे, आपके पास 2 साल का डाटा था, पहले 1 साल का डाटा लिया आपने, फिर दूसरे साल का। अब आप इसके अंदर वो ज्वाइंट करना चाहते हो दोनों सालों के डाटे को एक ही शीट के अंदर, तो आप उस तरह रो बाइंडिंग कर सकते हो, आप इस तरह कॉलम बाइंडिंग कर सकते हैं। तो ये चीजें मजीद हम देखेंगे आपके पास जब हम इसको आर के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो ये बेसिक आज का लेसन है जिसमें हम देखेंगे कि हम स्ट्रक्चर को कैसे ठीक कर सकते हैं। हेड टेल समरी और कॉलम नेम, ये छोटी सी कमांड है, इसको हम देखेंगे आप कैसे अपना व्यू कर सकते हैं। सब सेटिंग मैंने आपको अंडरस्टैंड कर दिया कि सब सेटिंग आपके पास लार्ज डाटा सेट है, उसमें से आप खास आपने कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप एक कैटेगरी रख, एक इरिगेशन रखना चाहते हैं, दूसरी इरिगेशन को स्किप करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम के नेम को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप अरेंजमेंट री लेवल, आप रीअरेंजमेंट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मुख्तलिफ कॉलम्स को बाइंड कर सकते हैं और मुख्तलिफ रोज को भी, डाटा सेट, दो डाटा सेट की रोज को और कॉलम को आप आपस में बाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम आर के अंदर ये सारी चीजें थोड़ी सी ट्राई करेंगे ताकि आप लोग समझ आ जाए। ये जी सेशन सर, अभी, आप ये कह रहे हैं। जी जी जी, तो आपने रीज्वाइन कर लेना है अगर ये सेशन ब्रेक हो जाए 40 मिनट। जी जी, जी सर, आप जी जी। ये कह रहे हैं। जी 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 सर, आप ये कर रहे थे कि इसमें कॉलम दूसरी रो के साथ अटैच करना चाहते हैं फॉर एनालिसिस के लिए, तो ये आर वो भी कर देगा। वो भी कर देगा। अब दो डाटा सेट को आप ज्वाइंट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर देगा। आपने दो अलग 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 फाइलें इंपोर्ट की हैं और फिर आप इनको इकट्ठा करना चाहते हो, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। आर के अंदर कॉलम बाइंडिंग कर सकते हैं, रो, अब दो दो डाटा सेट को मिला सकते हैं आप आर के अंदर। डॉक्टर इशरत, आपको अंडरस्टैंड हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी?
ओके, तो डॉक्टर साहब कल के लेसन में हमने देखा था कि हम अपने डाटे को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास डाटा फाइल CSV और एक्सेल में कर सकते हैं। आपके पास डाटा अंडरस्कोर फाइल का एक डाटा है, जिसके बाद आपके पास ये आप कोई भी नाम है फाइल का, आप कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद आपके read.csv का एक फंक्शन है, आप इसको यूज करते हैं, और उसके बाद आपके पास जो डाटा फाइल आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये हमारे फोल्डर में फाइल मौजूद है आपके पास। वर्किंग डायरेक्टरी पहले वर्किंग डायरेक्टरी सॉरी बनाई थी हमने, जिसमें हमारे पास हमने पाथ दिया था आर को, कि जहां हमारा सारा डाटा फाइल मौजूद है आपके पास। तो ये हमने पाथ देना, हम डायरेक्टर वर्किंग डायरेक्टरी हमारे पास ये डेवलप हमने कर ली। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था कि हम डाटा फाइल को इंपोर्ट करते हैं। ये मैंने उसको कोई भी नाम दे दिया, डाटा अंडरस्कोर फाइल के नाम से। read.csv आपके पास फंक्शन है, और डाटा अंडरस्कोर सॉइल आपके पास फाइल जो आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं, और CSV आपकी टाइप ऑफ फाइल है, और NA मैंने आपको बताया था ये आपके मिसिंग वैल्यू को डील करता है आपके पास। तो ये आपके पास कमांड है। CSV फाइल को आप अपने R सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं आपके पास। तो हम इसको इंपोर्ट करें तो आप विंडो 2 में देखें, आपके पास 72 ऑब्जर्वेशन है और 10 वेरिएबल के साथ आर के अंदर ये फाइल आपके पास इंपोर्ट होगी आपके पास। उसके बाद है आपके पास दूसरा स्टेप डाटा अंडरस्कोर फ्रेम का आपके पास, यानी डाटा को आपने रो और कॉलम में फ्रेम करना है। तो आपके पास वही फाइल का नेम वही सेम रहेगा आपके पास, डाटा डॉट फ्रेम, और ये जो आपके पास फाइल है डाटा अंडरस्कोर, ये आपके पास। अब मैं आपको ये फाइल शो कराता हूँ विंडो 2 में आपके पास। ये देखें आपके पास ये सारी चीजें उसने आपके पास डाटा इंपोर्ट होके सक्सेसफुली आपके पास आर के अंदर इंटर हो गया, कि हमने डाटे को अपनी जो हमारी CSV फाइल थी उससे हमने इसको इंपोर्ट करके आपके पास आर के अंदर, अब आर के प्लेटफॉर्म में डाटा आपका मौजूद है। तो इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कल हमने ये चीजें डिस्कस की थी आपके पास। सर मुझे यहाँ पे अगर आप मुझे दोबारा से रिपीट कर दें, बिकॉज क्योंकि ओके 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 डॉक्टर साहब, तो ये आपके पास SETWD आपके पास सेट वर्किंग डायरेक्टरी की एक कमांड है आपके पास। तो ये हमने जो पाथ आपके पास जहाँ पे आपके पास डाटा फाइल मौजूद है आपके पास, यानी जिस फोल्डर में आपके पास मौजूद है, आपको ये फोल्डर नजर आ रहा है, तो यहाँ जाके आपने इसको प्रॉपर्टीज में ये आपके पास लोकेशन यहाँ से कॉपी करेंगे। आपके पास जिस फोल्डर में आपके डाटा फाइल मौजूद है उसके अंदर आप इसकी लोकेशन यहाँ से कॉपी करके आप इसको आर के अंदर पेस्ट कर देंगे आपके पास। यहाँ आके आपके पास ये आपके पास वो लोकेशन जहाँ आके पेस्ट कर देंगे आपके पास। तो ये आपके पास वो पाथ आ जाएगा ठीक जो है आपने सर। आर को देना है कि जहाँ आपकी फाइल पड़ी है। लेकिन वहां आपके पास एक चीज आपने करनी है, ये उधर आपके पास बैकवर्ड स्लैश होती है, उसको आपने फ्रंट स्लैश में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे डायरेक्ट बैकवर्ड स्लैश को आर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो ये फॉरवर्ड स्लैश को अंडरस्टैंड करता है। तो ये सेट वर्किंग डायरेक्टरी जब आप बना लेंगी, अब आर को ये पता चल जाएगा कि जो मेरी फाइल्स पड़ी हैं जहां से मैंने डाटे को लेना है, तो मैंने इस पाथवे से उसको लेना है। तो ये एक्चुअली आप पाथ दे रहे होते हैं आर को, अपने फोल्डर का, ठीक है। अपने सिस्टम का, जहां आपकी फाइलें पड़ी हैं। ये आपको क्लियर है डॉक्टर शास्ता? हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया कि मैंने जहाँ से मेरा डेटा है, फॉर एग्जांपल मैं रेड कैप की बात करती हूँ, जो टूल जिसके ऊपर हमारा डेटा जाता है, ठीक है, मैंने वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, डाउनलोड किया, वो ठीक। फाइल जो मेरे पास आई वो मैंने फोल्डर में सेव की। अब मैं उस फाइल को वहां से वेरिएबल्स जो मुझे डेटा रिक्वायर्ड है मैं उसको फिल्टर करना चाह रही हूँ, ठीक है। हाँ तो ठीक। उस फाइल को मैंने प्रॉपर्टीज में जाके उसकी लोकेशंस को कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया है, ठीक है। हाँ पेस्ट कर और दो। जो आपने इसकी, हाँ, पेस्ट कर दिया, जो आपने इसकी स्लैश का बताया कि वो फॉरवर्ड यानी उसको करता है, एंटरटेन करता है, जी बैकवर्ड जो स्लैश है उसको नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसकी मैंने यहाँ से ये भी चेंज की, और ये मेरा एक मतलब एक वो हो गया, टास्क कंप्लीट हो गया जो मैंने आर को देना था। जी जी, आपके पास दिस ये इज आपका, हाँ बिल्कुल राइट। तो ये उसको समझ लग गई कि अब मैंने फाइलें लेनी कहाँ से हैं। सबसे गलती पहले यहीं पे होती है कि आपने उसको पाथ जो देते हैं वहां पे, और मैंने ये पिछले लेसन आप सुनेंगे तो उसमें मैंने डिस्कस किया था, जो आपने फोल्डर का नाम रखना है उसमें स्पेसेस नहीं देनी।
आप ये देखें ना, मैंने जो R डैश बेसिक डैश स्कोर्स डैश 8 दिया हुआ है, तो इसके अंदर मैंने स्पेस नहीं दिया, आपने डैश के साथ लिंक करना है। R इस चीज में कंफ्यूज हो जाता है कि ये सिंगल स्पेस है या डबल स्पेस है। तो जो भी फोल्डर का नाम बनाना है, ठीक है। जो भी फाइलों का नाम बनाना है, उसमें स्पेस नहीं देनी, आप डॉट डाल दें या डैश के जरिए उनको कनेक्ट कर दें। तो ये इसमें एरर ज्यादा लोगों ठीक को है। आता है, तो वो कि सिंगल स्पेस है डबल स्पेस है, वो इस चीज में आर कंफ्यूज होता है और वो आपके पाथ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, इस वजह से एरर के चांस बढ़ जाते हैं आपके डायरेक्टरी बनाते हुए। ठीक है ओके, आपका पहला सर, स्टेप मुझे ये होगा। पास्ट वाले वो लेक्चर्स, जी जी पास्ट जी, वाले सर लेक्चर्स मुझे कहाँ से मिल सकते हैं? वो हमारे यूट्यूब चैनल पे दोनों लेक्चर मौजूद है, फुल लेक्चर आपके पास अवेलेबल है हमारे चैनल पे। ठीक है, ओके फाइन सर। हाँ, आप उनमें से देख लें, कोई भी कंफ्यूजन है हम डिस्कस कर लेंगे, नोट्स भी अवेलेबल हैं, कोई भी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कोई भी होगा तो हम कर लेंगे उसको। ओके, उसके बाद आपके पास है डाटा फाइल। अब आपके पास है डाटा फाइल हमारे यहाँ CSV में मौजूद है। तो ये आपके पास हमने बताया था इज इक्वल टू से पहले पहले आप किसी भी उसका नाम खुरम रख सकते हैं, कोई भी आपके पास राहिल रख सकते हैं, मजीद रख सकते हैं। तो ये उस फाइल का नाम आप कोई भी देना चाहें। उसके बाद इज इक्वल टू के बाद आपके पास कमांड शुरू होती है read.csv। आप फाइल जो आपका हम CSV फाइल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आपके पास है। फिर आपके पास इन्वर्टेड कामा के अंदर उस फाइल का नाम, और देन आपके पास फाइल की टाइप .csv आपने ये लिखनी है। और उसके बाद कामा, और ये आपके पास है कि ये मिसिंग वैल्यू अगर कोई आ जाती है, आपके पास 3 रेप्लिकेशन थी लेकिन एक रेप्लिकेशन का आप डाटा नहीं ले सके या किसी वजह से मिस हो गया, तो आर को जब ये स्टैटिक आप ये चीज देंगे तो आर समझ जाएगा कि मैंने 2 रेप्लिकेशन की बेस पे और उसका ये जो स्टैट की कैलकुलेशन करनी है या ग्राफिक के मीन बनाने हैं तो उस दर से बनाने हैं। बात सॉफ्टवेयर है, आपके पास कोई भी मिसिंग वैल्यू है तो वो आपको रोक देते हैं कि नहीं जी अपनी वैल्यूज पूरी करें, डाटा आपका इनकम्प्लीट है। तो लेकिन आर आपके पास अगर किसी एक रेप्लिकेशन में डाटा मिस है तो आर उसको हैंडल कर लेता है आपके पास, वो आर आपको एरर नहीं देता। ये अंडरस्टैंड हो गया डॉक्टर शास्त्री, ये लाइन आपको अंडरस्टैंड होगी? डाटा इंपोर्ट कैसे करेंगे आपके पास? कि अगर मेरी फाइल CSV वाली है, जी जी, हाँ वहां से जो है मुझे इंपोर्ट कैसे करना है? इंपोर्ट कैसे करना है आपको, डाटा को आपके आर के अंदर कैसे आएगा? जी सर, हो गया मुझे कि अगर मेरा, हाँ इंपोर्ट कैसे करना है? जी जी, सही। इंपोर्ट सर कैसे उस कर, इंपोर्ट जो मैं कर रही हूँ डेटा, उस डेटा के अंदर कोई वैल्यू मिसिंग है, जी जी, उस डाटा के उसके अंदर लिए कोई, मैं ये स्टैटिक और NA लिख देंगे आपके पास, वो डाटा को समझ जाएगा कि मिसिंग वैल्यू को मैंने स्किप करना है, तो वो फिर वो कैलकुलेशन वगैरह में कहीं आपको इशू नहीं करेगा। हाँ मैं यही, जी ठीक, जी, ठीक है। ओके। उसके बाद आपके पास है डाटा फ्रेम, यानी डाटा आपने इंपोर्ट कर लिया तो इसको आपको एक फ्रेम में देने के लिए ये रोज और कॉलम को हम ये कमांड यूज करते हैं। तो ये मतलब ना भी यूज करें तो काम चल जाता है, लेकिन अगर कर दें तो आपके डाटा थोड़ा सा फ्रेम बेहतर हो जाएगा। डाटा डॉट फ्रेम और डाटा अंडरस्कोर, ये जो आपने डाटा फाइल इंपोर्ट किया है, जो उसने जो भी आपने नाम रखा है, तो आप यहाँ पे जाके उसको फ्रेम की शक्ल में दे देते हैं आपके पास। फिर मैंने ये आपको डाटा आपको शो कराया, ये देखें आपके पास ये विंडो 3 के अंदर ये सारा डाटा उसने आप इंपोर्ट होके अंदर आ गया आपके पास आर के अंदर। तो ये हमने सक्सेसफुली इंपोर्ट उसने डाटे को कर दिया। अब जो अगला स्टेप मैं बता रहा था, स्ट्रक्चर डिफाइन। अब यह हम सबसे मेन चीज, आप जब डाटा इंपोर्ट कर लेंगे, डाटा को फ्रेम दे देंगे, तब आपने स्ट्रक्चर को देखना है कि आर अब स्ट्रक्चर क्या शो करा रहा है। अब स्ट्रक्चर की कमांड str स्ट्रक्चर, और जो डाटा फाइल है उसको आपने लिखना है। अब ये देखें, हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये आपके पास स्ट्रक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है। इरिगेशन को वो क्या पढ़ रहा है, डॉक्टर मजीद साहब, इरिगेशन को वो क्या पढ़ रहा है? वो कह रहा है CHR, ये करेक्टर मुझे लग रहे हैं कि नॉर्मल नॉर्मल स्किप। इरिगेशन जो आपके पास है वो उसको करेक्टर पढ़ रहा है, और इसी तरह मल्चेस, ये हमारी ट्रीटमेंट है, इसको भी वो करेक्टर पढ़ रहा है। नाइट्रोजन रेट्स हैं, इसको भी वो हमारी ट्रीटमेंट्स हैं, और एप्लीकेशन का डाटा भी आपके पास है। तो ये इन सारी चीजों को वो करेक्टर पढ़ रहा है आपके पास। वो कह रहा है करेक्टर्स हैं, और बाकी जो नंबर्स वगैरह शो कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, वाटर कंटेंट है, सॉइल फास्फोरस है, सॉइल पोटाशियम है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, बाकियों को वो नंबर कह रहा है। लेकिन जो हमारे ट्रीटमेंट वेरिएबल्स हैं, अब इस पे आप स्टैट लगाएंगे या ग्राफ बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के साथ, तो वो उसमें एरर देगा। अब हमने पहला स्टेप क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हमने अपने स्ट्रक्चर को ठीक करना है। अब मैंने आर को कहना है कि ये जो चीजें हैं ये मेरे स्ट्रक्चर, ये मेरे कैरेक्टर्स नहीं है, ये मेरे फैक्टर्स हैं जिनके आगे लेवल्स आपके पास हैं।
जो मैं चीज चेक करने जा रहा हूँ आपके पास। तो ये आपके पास जो फाइल, आप मैं आपको दोबारा भी समझा थोड़ा सा ये मुकम्मल हो जाए फिर एक दफा। डाटा अंडरस्कोर सॉइल आपके पास ये कमांड हम यूज करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि विद इन आपके पास डाटा, जो डाटा अंडरस्कोर सॉइल है, आपने इरिगेशन को फैक्टर में कन्वर्ट करना है। इसी तरह मल्च को भी एज ए फैक्टर रीड करना है आर ने, नाइट्रोजन को भी आपने एज ए फैक्टर डील करना है, और एप्लीकेशन को भी आपके पास, क्योंकि उसके लेवल्स हैं, इसको भी फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो थोड़ी सी आपको मजीद क्लियर हो जाए। अब देखें अब क्या स्ट्रक्चर आ रहा है। पहले वाला स्ट्रक्चर क्या था? सर पहले फैक्टर कैसे लिखा आपने इस पे? ये हेलो ये जी 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 सर, जी फैक्टर कैसे लिखा आपने? ये फंक्शन है फैक्टर्स आपके पास। जस्ट आपके पास फैक्टर, आपने ये देखें आपके पास ये खुद ही उसको पता है कि ये फैक्टर्स कमांड है आपके पास। ओके ये ओके। आपको ये आपके पास है। तो ये आपके पास, अब ये मैं फर्क बताता हूँ जो मेन चीज। अब देखें पहले वाले स्ट्रक्चर हमारे पास नजर आ रहा है आपको, ये देखिए ये आपके पास स्ट्रक्चर, उसको कोई पता नहीं था कौन से फैक्टर है, वो सारों को करेक्टर पढ़ रहा था, क्योंकि नाम्स को आर हमेशा करेक्टर के लेता है। लेकिन हमने उसको ठीक करके अब बताना। अब नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखें। अब देखें आपके पास इरिगेशन को वो अब कह रहा है जी बिल्कुल ये फैक्टर है आपके पास, और इसके दो लेवल्स हैं, नॉर्मल और स्किप। इसी तरह मल्च को उसने अब फैक्टर पढ़ा है आपके पास, तो फैक्टर आपके पास लेवल वो कह रहा है 4 लेवल है इसके। मैं आपको फिर दिखाता हूँ। नाइट्रोजन आपके पास है, वो इसको भी अब हमने फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, और रेप्लिकेशन को भी हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट वेरिएबल थे वो फैक्टर्स में होने चाहिए, और जो आपके पास बाकी जो मैंने बताया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनको आपने सारों को आपने फैक्टर में कन्वर्ट करना है। और जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है अब वो नंबर में होने चाहिए। ये देखें ऑर्गेनिक मैटर है, इस पे हम असर चेक कर रहे हैं, वाटर कंटेंट है, सॉइल फास्फोरस है, आपके पास पोटाशियम है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो ये सारे आप वो नंबर्स के अंदर रीड कर रहा है आपके पास। तो सबसे पहला स्टेप ये करना है, आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, और बाकी जो आपके पास होने चाहिए वो नंबर्स में होने चाहिए आपके पास। तो ये सबसे अहम स्टेप है आपकी स्टैट के लिए, ग्राफिक के लिए, कि आपने डाटा को इंपोर्ट करना है, डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, और तीसरा जो मेन स्टेप करना है, आपने उसको स्ट्रक्चरिंग उसकी सही करनी है। आर को नहीं पता कि कौन से आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कौन से आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो आपने वेल डिफाइंड, सबसे पहले कोई भी एनालिसिस करने से पहले आपने यहाँ ये स्टेप लाजमी करने हैं। चाहे आप स्टैट लगा रहे हैं डाटे को, चाहे आप ग्राफ बना रहे हैं, जब तक सही करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे आर आगे नहीं चलेगा। तो मुझे सर मैंने क्या सर, बताया? जी 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 सर, इसको जरा रिपीट करिएगा कि डेटा को सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे। जी जी डाटा को सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना है। जैसे हमने वो CSV फाइल का डाटा इंपोर्ट किया, फिर हमने उसको एज ए फ्रेम में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसके स्ट्रक्चर को सही किया कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, हमने उन सारों को आपके पास ट्रीटमेंट में कन्वर्ट, उसको जो ट्रीटमेंट्स थी आपके पास जो भी, उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है, और बाकी जो आपके पास डाटा जो नंबर्स में होना चाहिए। यानी आपने क्लियरली आर को बताना है कि आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं। आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को फैक्टर में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपके नंबर में होना चाहिए। अगर इस तरह आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है और आपने डायरेक्ट ही एनालिसिस शुरू कर दिए हैं या ग्राफ शुरू कर दिए हैं, तो इसी तरह होता था। जब हमें सिखाया गया तो हमें ये चीज नहीं बताई गई, हम ग्राफ बनाते थे वो अजीब किस्म के ग्राफ बन जाते थे। वो हम सारा दिन परेशान होते, लोगों के ग्राफ सही बन रहे, हमारे ग्राफ सही नहीं बन रहे। तो मेन जब फिर हमने चीजों पे गौर किया तो ये स्टेप मिस था उसमें, कि आपने पहले तो अपना स्ट्रक्चर ठीक करें उस डाटे का, उसके बाद अब आर को समझ लगेगी कि अब मैंने क्या करना है आगे, ग्राफ कैसे बनाने हैं, मीन कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास ये बात समझ रही है डॉक्टर मजीद साहब, रहील साहब, डॉक्टर इशरत? सर थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय हाँ बेस्ट। नहीं, कंसेप्ट आ गया ना आपको, कंसेप्ट पता चल जाए इस लेवल में बस के मतलब जी है कि सर। पहले के स्ट्रक्चर को आपने ठीक करना है। मजीद साहब आपको क्लियर है सर? जी जी, आपने कहा कि जैसे हमने डेटा इंपोर्ट किया है ना सर, जी जी तो अब डेटे को फिर हमने उसकी फ्रेमिंग करनी है। फ्रेम करने के बाद वो उसको नहीं पता ये क्या है, वो करेक्टर समझ रहा है सबको। हाँ तो उसके बाद होना ये है कि हमने उन करेक्टर्स की जो है उसको फैक्टर में बदलना है, उसको बताना है कि वेरिएबल्स कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, डिपेंडेंट कौन से हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल उसके सर, बाद फिर जो है उसको वो अरेंज करके वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा सर। कन्वर्ट कर दे, बिल्कुल ऐसे है। राहिल भाई आपको ये समझ लगी है? जी सर, मुझे क्लियर है सर।
ओके गुड। तो ये एक इंतहाई अहम कंसेप्ट है, मतलब ये सब अगर गलती यहाँ पे करेंगे जो आगे जो चीजें होंगी वो नहीं होंगी। तो डाटा हमने इंपोर्ट कर लिया, डाटा फ्रेम कर लिया, डाटा के स्ट्रक्चर को ठीक कर लिया आपके पास। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक चीजें आपके पास हैं, कुछ बेसिक कमांड्स हैं, वो आप डॉक्टर शायस्ता सुहेल डिस्कनेक्ट होगी, एक मिनट ये दोबारा ज्वाइन कर लें। तो ये 3-4 स्टेप्स आपके पास हैं, अब थोड़ा सा काम आसान हो गया, आप लोग ये समझ रहे हैं। डॉक्टर इस तरह रिपीट करेंगे हमने क्या क्या किया थोड़ा सा, डॉक्टर शास्त्रा जब तक ज्वाइन कर लेती हैं अगर हम। आज हमने क्या क्या देखा अभी तक हमने क्या क्या चीजें। हेलो। जी जी डॉक्टर हाँ इशरत सर। आपके। जी सर जी जब डेटा हमने इंपोर्ट किया तो वहां पे आर ने जो है ना उन सबको कैरेक्टर वॉइस जो है ना उसने उसको रीड किया, तो दिस इज एबनॉर्मेलिटी। तो उसकी करेक्शन की, उसको हमने फैक्टर में कन्वर्ट किया, जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल थे वो फैक्टर में कन्वर्ट हुए, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ नेम वो सारे वो इन टर्म ऑफ इन एक मिनट, हाँ, जो हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे वो नेम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ओके। तो हमने मतलब इंपोर्ट कर लिया, डाटा को फ्रेम कर लिया, हमने डाटा के स्ट्रक्चर को सही कर लिया। अब कुछ बेसिक चीजें मैं कमांड्स आपको दिखाता हूँ कि हेड एक आपके पास डाटा इंपोर्ट हो गया, अब हमने चेक करना है जो डाटा इंपोर्ट हुआ है वो सही भी है या नहीं है। तो आपने हेड ऊपर वाले आपके पास ये वाली कमांड है हेड, आपके पास जो डाटा फाइल है उसका नाम लिखेंगे तो वो आपको ऊपर वाले हेड शो करा देगा, यानी 6 वैल्यूज आपको अब बासुकात आप ऐसा डाटा इंपोर्ट करते हैं जिसमें मतलब 1000 रोज है। तो आप वेरीफाई करते हैं अपनी CSV फाइल या एक्सेल फाइल के साथ जो आपका डाटा आर के अंदर इंपोर्ट हुआ है वो ये सही है या नहीं है। तो पहली कमांड आपके पास हेड यूज करते हैं, हम ऊपर वाली 6 रोज को देखते हैं और इसकी वैल्यूज चेक करते हैं अपनी CSV फाइल के साथ कि जो डाटा इंपोर्ट हुआ है बाकी वही डाटा है या नहीं है। तो आप इस तरह डाटा को चेक कर सकते हैं। दूसरा इसी तरह आपके पास टेल का कमांड है, डाटा अंडरस्कोर सॉयल। ये आपके पास 6 नीचे वाली रोज शो कराएगा आपके पास, ये देखें 67 से 72 तक ये आपको टेल शो कराएगा डाटा की। तो हेड आपको ऊपर वाली 6 रो शो कराएगा आपके पास हेड कमांड, और टेल कमांड आपको शो कराएगी कि नीचे वाली आपके पास 6 रोज को। तो इसके ये बता रहा हूँ कि आपके पास बड़ा डाटा है, 1000 का 1000 रोज हैं, 2000 रोज हैं। तो बासुकात आप जो इंपोर्ट करने के बाद आप डाटे को चेक करते हो कि जो डाटा मैं वर्किंग करने जा रहा हूँ या इस पे ग्राफ बनाने जा रहा हूँ तो ये डाटा सही आर के अंदर इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। डॉक्टर शास्ता अलमास, मैंने क्या बताया आपके पास हेड और टेल का क्या आपके पास है, ये क्यों हम करते हैं। हेड और टेल में आपने ये डिफरेंस बताया कि अब मैंने डेटा जो है वो इंपोर्ट कर लिया है, हम्म और हेड की कमांड इसलिए यूज करूंगा जो मुझे फर्स्ट मतलब जो सिक्स फर्स्ट स्टेट मतलब फर्स्ट जो लाइंस होंगी 6 उनके बारे में बता रहा होगा, और जो टेल वाली कमांड है वो एंड एंड वाली जो है वो लाइंस के बारे में बता रहा होगा, और वहां से हमारा टैली होगा कि डेटा जो है वो मतलब सेम है कि नहीं। सेम है या नहीं, बिल्कुल ऐसे ही आपके पास है। जी सर, 6 लाइन 6 रो 6 रो बिलो वाले, इनिशियल और 6 जो है। 6 एंड वाली हाँ आपको डाटा शो करा देगा आपके पास है। उसके बाद आपके पास एक कॉलम नेम्स हम देखते हैं कि जो डाटा हमारे पास इंपोर्ट हुआ उसके नेम्स क्या है आपके पास, कॉलम्स के नेम कौन कौन से हैं, इरिगेशन है, मल्चेस है, नाइट्रोजन रेट्स है, रेप्लिकेशंस हैं। तो इस तरह आप इसको करेंगे तो आपके पास नेम आपको शो हो जाएंगे, आपके डाटे में कितने आपके पास पैरामीटर हैं या कितने कॉलम्स आपके पास हैं, तो सारे कॉलम्स के आपको नेम शो हो जाएंगे आपके पास। जी मुझे सब आपको समझ आया। कॉलम नेम्स का क्या आपके पास है कि कॉलम नेम में आपको पूरा डाटे के कॉलम आपके पास व्यू हो जाएंगे। सर कॉलम नेम्स में कॉलम के जो पूरा डेटा के नेम्स होंगे वो सारे शो हो जाएंगे, हाँ आर के अंदर हेड में आपके पास ऊपर वाले कॉलम आ जाएंगे और टेल में एंड वाले आ जाएंगे, हम उनको एंड, आपस में टैली कर सकेंगे हमारा हाँ डेटा करेक्ट है या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास है। अब ये हम लेवल्स देखना चाहते हैं कि आपके पास डाटा अंडरस्कोर सॉयल है और
इसमें आप ये जब ये डॉलर साइन देंगे तो वो आपको कॉलम शो करा देगा। ये नहीं देखें डाटा अंडरस्कोर सॉइल मैंने लिखा, फिर मैंने ये डॉलर साइन दिया, डॉलर में उसने आपको सारे कॉलम्स शो करा दिए। अब मैं देखना चाहता हूँ जो इरिगेशन है मेरे पास, इसके कितने लेवल्स हैं। इरिगेशन के अंदर मेरे 2 लेवल्स हैं, नॉर्मल इरिगेशन है, स्किप इरिगेशन है। इसी तरह मैं बाकी देखना चाहता हूँ, डाटा अंडरस्कोर सॉइल आपके पास, ये आपके पास मल्चिस में मेरे पास कितने लेवल्स हैं, ये देखें आपके पास 4 लेवल्स हैं आपके पास। डाटा को मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब वो जो मैंने डाटा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये डाटा आपके पास नाइट्रोजन रेट्स हैं, ये आपके पास है। ये देखें आपके पास डाटा ओपन हो रहा है। अब आप डाटे को बार बार एक्सेल में जाके रीड करना या उसको देखने की जरूरत नहीं है। हमने देखा इरिगेशन हमारे पास कितने लेवल है, नॉर्मल इरिगेशन है, स्किप इरिगेशन है। उसके बाद आपके पास कंट्रोल है, प्लास्टिक मल्च है, राइस स्ट्रॉ है, सॉडस्ट, आपके पास मल्चेस के कितने लेवल्स हैं, और उसके बाद नाइट्रोजन रेट आपके पास कितने हैं, 0 है, 75 है, 150 है आपके पास। आपको अंडरस्टैंड किया आपको बस डॉक्टर इशरत आपने कि डाटे को ओपन कर रहे हैं, अब डाटे को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारा डाटा कितना आपके पास क्या चीज वो है उसके पास। हेलो डॉक्टर इशरत, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो डॉक्टर मजीद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी सर, हमने इन कमांड्स में क्या देखा? इन कमांड्स में हमने जो कॉलम्स हैं उनके लेवल्स देखे हैं। पहले तो हमने कॉलम लिखा है तो सारे कॉलम्स आ गए हैं, फिर वन बाय वन हमने हर एक के लेवल चेक किए। जैसे इरिगेशन के 2 लेवल हो गए, आगे जो है मल्चिस के 4 लेवल हो गए, और इसी हम्म। तरह नाइट्रोजन के 3 लेवल हो गए। जैसे जैसे आते जाएंगे वो खुद ब खुद शो करता जाएगा, हमें एक्सेल शीट में जाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, आपको एक्सेल शीट में उसके जाने की जरूरत नहीं है आपके पास। जी डॉक्टर इशरत, आपने अंडरस्टैंड किया इन कमांड्स को? जी डॉक्टर शायस्ता, आपने अंडरस्टैंड किया आपने इसको कि ये हमने क्या किया इन 3-4 कमांड्स के अंदर? जी डॉक्टर रहील, क्या हुआ इन कमांड्स के अंदर? आवाज आवाज थोड़ी सी सर, आवाज स्लो है रहील साहब। हम्म। डॉक्टर रहील साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। तरफ आ रही है। अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही। सबसे पहले हमने कॉलम्स वगैरह को देखा है, और हम्म। बाद में हमने इसके जितने भी है इसके पॉइंट्स को देखे हैं। मतलब हमें बार बार हम्म। एक्सेल पे जाने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल यहाँ पे दिखा रहा है जो हम्म। ओके। यस डॉक्टर इशरत, मेरी आवाज आ रही है आपको? हम्म। डॉक्टर शायस्ता, आपने अंडरस्टैंड किया इसको इन कमांड्स को? जी सर, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था तो मैं ऑन एंड ऑफ ही सुन रही थी। ठीक है, हमने इन कमांड्स के अंदर देखा कि कॉलम्स ना, कॉलम नेम्स आपने मतलब इस कमांड से शो हुए, फिर हमने लेवल्स चेक कर रहे हैं जो हमारे पास जो फैक्टर्स थे, इरिगेशंस था, मल्चेस थे और नाइट्रोजन रेट से, इसके अंदर लेवल कितने छुपे हुए हैं। इसके अंदर आपने देखा नॉर्मल है और स्किप इरिगेशन है आपके पास। इसके बाद हमने इसी इस लेवल्स की दूसरी कमांड सर, से आपको देखा। हमारी आवाज आ रही? जी जी, आपके पास आ रही है, आपके पास क्लियर है। यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, वो थोड़ी सी इंटरप्ट कर रही थी। आप जरा इसको सर यहाँ से कॉलम से इसको रिपीट करिएगा, क्योंकि मैंने ऑन हर एंड ऑफ ही सुना है कि वो अच्छा, इंटरनेट का थोड़ा ये इशू देखें हो मैं रहा आपका, था। ये कॉलम्स नेम के साथ हम अब पहले तो हमने कॉलम्स नेम के कॉलम आपको नेम जी से। कॉलम्स नेम,
फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो फैक्टर्स से लेवल्स, इसके अंदर लेवल्स कौन कौन से हैं। डाटा अंडरस्कोर सॉइल आपके पास है। उसके बाद ये देखें आपके पास इरिगेशन था, जो ये आपको ये कॉलम्स आपको ओपन कर देगा इरिगेशन वाला। ओके, आपके पास दूसरा हमने सर सॉरी, जी जी, तो लेवल्स के अंदर हम देख रहे हैं जो हमारे फैक्टर्स हमारे पास, वो आपके पास उसके जो लेवल्स, आपके पास जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं, तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, तो वो हम अपने उसे ये हमारे पास दूसरे डाटा अंडरस्कोर देखे हमने हर इरिगेशन का, मल्चेस का, नाइट्रोजन रेट्स के हमने उसके अंदर लेवल्स चेक किए कि हमारे पास इनके लेवल्स क्या आ रहे थे। देखिए हमारे पास फैक्टर्स थे ना इरिगेशन के अंदर, दो चीजें छुपी हुई थी, नॉर्मल इरिगेशन, स्किप इरिगेशन। इसी तरह मल्चेस के अंदर कंट्रोल, प्लास्टिक मल्च, राइस स्ट्रॉ, सा डस्ट, आपके पास ये सारी चीजें आपके पास है। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? नो सर। यस सर, आ रही है। जी सर। अब नजर आ रही है? जी सर। ओके, तो हमने इन में देखा आपके पास कॉलम नेम आप कैसे व्यू कर सकते हैं, आपके पास लेवल्स आप कैसे फैक्टर्स के चेक कर सकते हैं। तो आपके पास ये हमने दो कमांड्स यूज किए आपके पास, ये आपके पास है। तो ये दो चीजें आपको अंडरस्टैंड होगी हैं। अच्छा सर, ये जो कॉलम के मुझे यहाँ पे सर, खैर इसकी समझ तो मुझे नहीं आई क्योंकि वो इंटरनेट ऑन एंड ऑफ हो रहा था, इंटरप्ट कर रहा था। मुझे एक चीज आपसे सर यहाँ से ये पूछनी थी, फॉर एग्जांपल हम जेंडर ब्रेक डाउन देखते हैं जैसे मेल और फीमेल का, जी जी। तो उसको हम सर कैसे वो कर रहे होंगे? एक तो जेंडर ब्रेकडाउन ठीक है, और दूसरी मुझे आपसे ये चीज पूछनी थी सर कि जैसे हमारी एज रेंज होती है ना, हम उसका ब्रेकडाउन कर रहे होते हैं। जैसे हम कह लें कि अडल्ट की एज रेंज हम कह रहे थे, हम कहते हैं कि 60, हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि 16 से 25 ईयर तक मतलब कितने लोग जो हैं वो मेल कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, और उसमें से कितने फीमेल्स, हम एज रेंज जैसे दे रहे थे। सर इसके लिए हम क्या, मतलब वो भी इसी इसी में आ रही होगी, हाँ कमांड्स आ रही होंगी हाँ वो हाँ, भी? नहीं, इसी में नेक्स्ट में हम इसमें सब सेटिंग में जाएंगे, उधर हम उसको फिर स्पेसिफाई करेंगे कि मेल और फीमेल या जैसी एज चीजें रेंज हम का सर, और एज जेंडर का ब्रेकडाउन हो गया। जेंडर ब्रेकडाउन आप उसमें अलग कर सकते हैं कि आप अलग अलग दोनों को कर दें उसमें कि कितने मेल के डाटा को अलग अच्छा, कर दें, और फीमेल के डाटा को अलग कर दें। जी जी। हम्म। और सर इसमें अगर हम डिजीज वाइज देखना चाह रहे हैं, मतलब फिल वो वक्त भी हम ये देखते हैं कि वो भी कितना फिल्टर लगा, सिम्टोमेटिक रेट्स आ रहा है। हाँ वो भी लगा सकते हैं, फिल्टर कोई भी इसमें लगा सकते हैं आप, मतलब इस चीज को सब सेटिंग के थ्रू कोई भी आप डाटा में से कौन सी चीज चाह रहे हैं वो आप उसको अलग कर सकते हैं आप। वो ये हम देखेंगे आपके पास नेक्स्ट में इसको ना। तो ये आपके पास हमने देखा कि कॉलम्स नेम्स के हवाले से कि ये आपके पास आ गया एक ये डाटा सेट है, डाटा अंडरस्कोर सॉइल है, जिसमें आपके पास ये सारे कॉलम मौजूद हैं। मैंने आपको कहा था कि आप हम सिलेक्शन का नाम है, सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, ये 50 कॉलम है, 100 कॉलम्स है आपके पास, हमें इसमें से कुछ कॉलम्स चाहिए। डाटा सारे कॉलम हमारे काम के नहीं है। डाटा कलेक्शन करते वक्त तो हम सारी चीजें ले लेते हैं, लेकिन जो आप पेपर बना रहे हैं, जो हम जिस पे स्टैट लगाना चाहते हैं, हम इसमें से कुछ कॉलम हमें चाहिए आपके पास। डाटा सॉइल आपके पास है, तो मैं ये एक नई फाइल बनाता हूँ आपके पास, इसको 02 के नाम से आपके पास इसको दे देता हूँ आपके पास। तो डाटा अंडरस्कोर सॉइल, अब मेरे पास सारे मुझे रोज चाहिए, लेकिन कॉलम मुझे चाहिए 1 से लेकर 5 तक। सही। अब मैं डाटा अंडरस्कोर सॉइल 02, 1 मिनट, या ठीक है, ये आपके पास दे रहा हूँ।
अब ये देखें इस कमांड में क्या हुआ। अच्छा अब सर, इसमें तो आपने मतलब दिया कि मुझे स्पेसिफिक डेटा चाहिए, मतलब इससे अ, इस रेंज तक, हाँ यानी मुझे मुझे नहीं कॉलम मुझे चाहिए। मुझे ये वन से ये देखे मुझे ये मैंने उसको कहा मुझे बस ये ऑर्गेनिक मैटर था। ये इरिगेशन कॉलम 1 था, मल्चेस 2 थी, नाइट्रोजन रेट 3 था, रेप्लिकेशन 4 अच्छा अच्छा और अच्छा। 5वां ऑर्गेनिक मैटर। ये 5 कॉलम मुझे ठीक है। चाहिए। ये बाकी जो छठा है 7वां 8वां 9वां कॉलम मुझे ये डाटा नहीं अच्छा। चाहिए। तो मैंने अब वो सही। सारे कॉलम्स आर को कहा कि डिलीट कर दो। तो आर ने हम्म। अब मुझे एक नई फाइल बना के दे दी डाटा अंडरस्कोर साइल 2 के नाम से। अब जिसमें सिर्फ मेरे ये कॉलम्स हैं, बाकी सारा डाटा 5 तक। अब बाकी 5 तक हैं। बाकी सारे आपके पास डिलीट हो गए मेरे पास। अब उसके बाद सारा चीजें खत्म हो गई। लेकिन सर ये हमें ऊपर तो नजर आ रहा है मतलब यहाँ पे, लेकिन मतलब वो इस तरह से नीचे मतलब हमें शो कर देगा। हाँ आपको ये शो कर देगा ना, ये सारी चीजें आपके पास ये डाटा आप ये आपके पास इसको देखें ना। ये आप देखें, आप ये पूरा डाटा आपको उसने नीचे शो करा दिया कि ये देखें आपके पास ये पूरा आपके पास इन अरे चीजों का रेप्लिकेशंस के नाम से ऑर्गेनिक मैटर तक ये देखिए वो रुक गया आपके पास। ये आपको ऑर्गेनिक मैटर तक अब वो बाकी सारी चीजें अब उसने खत्म कर दी हैं आपके पास। अच्छा। और अगर हमें बिलफर्स वो भी बाकी जो, हाँ, हमने जिनको मतलब ये यहाँ पे क्विट किया हुआ है, अगर हमें ये भी फॉर दैट मतलब नेक्स्ट किसी उस पे ये भी चाहिए हो, तो वो फिर हम यहाँ से इनको दोबारा डाल देंगे यहाँ पे, नहीं तो नहीं वो नहीं दोबारा। नहीं दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। वो डाटा अंडरस्कोर सॉइल वाली ओरिजिनल फाइल आपके पास सेव है। ये एक नई फाइल ठीक है बन ठीक गई है। है डाटा अंडरस्कोर सही सॉइल सही 2 सही के सही। नाम से। वो ओरिजिनल आप ओरिजिनल में फिर कोई आगे एनालिसिस करना चाहते उसको हैं किसी हाइड और। करके मतलब यही होगा सर, ऑटोमेटिकली वो हाइड करके तो हमें स्पेसिफिक ही दिखा रहा होगा, फिर खुद ब हाँ खुद ही वो हाइड वो खुद करके वो ना। मतलब उसने जो आप एक्सेल में बनाते थे ना शीटें बनाते थे, अब आर के अंदर एक नई शीट बन गई है जिसमें सिर्फ ये कॉलम है, बाकी कोई भी कॉलम नहीं है, बाकी उसके पास कोई डाटा है। सही। सही सर। मुझे ये सब आपने अंडरस्टैंड किया इस बात को। मुझे सब अंडरस्टैंड किया आपने इस बात को। क्या बताया मैंने सर। हेलो मुझे सब मेरी आवाज आ रही है आपको। हेलो मुझे सब मेरी आवाज आ रही है आपको। राहिल साहब, राहिल भाई मेरी आवाज आ रही है आपको। यस। मे बी सर उनके माइक म्यूटेड हो या हाँ समथिंग कुछ। माइक म्यूटेड है बिल्कुल। राहिल भाई मेरी आवाज आ रही है आपको। जी सर मुझे जी आपको क्या समझ आया सर आपके पास डाटा का आपको क्या समझ आया। इसमें ये था कि हमारे पास एक डाटा है, उसमें से हमें जो रिक्वायर कॉलम है या हम्म 1 2 3 4 जो भी हम उसे इस तरह प्लेस कर सकते हैं। मेरा सवाल इसमें ये था कि अगर हमें फर्ज करेंगे 1 से 5 तक तो चाहिए, लेकिन हमें 9th भी चाहिए या 7th चाहिए, दरमियान हम्म वाले नहीं चाहिए, तो वो इसमें डाल सकते हैं या उसके हाँ लिए। हाँ हाँ अब वही मैं करने जा रहा हूँ आपके पास। अब ये आपके पास अब हमें कोई सिलेक्ट कॉलम चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, फिर हमें 7 चाहिए, फिर हमें 9 चाहिए। तो आपके पास ये काम आपके पास सी के साथ आप ये आप उसको रेंज बताएंगे कि आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ फिर। अब ये देखें आपके पास जो भी आपको रैंडमली कॉलम चाहिए आप उसको स्पेसिफाई कर दोगे कि मुझे ये वाले कॉलम चाहिए, बाकी कॉलम्स नहीं चाहिए, तो आर आपको वो सिलेक्ट करके दे देगा आपके पास। बात अंडरस्टैंड होगी आपको। जी सर। ओके गुड। मुझे सर आपका माइक म्यूट है सर आपके पास। सर हेलो। रो का भी ऐसे ही होगा। यस सर आई एम लिसनिंग सर। ओके गुड। तो क्या आपने समझा मतलब देखें आप जी रो में भी आपके पास इसी तरह ये कामा से पहले रोज की सिलेक्शन है, कामा के बाद कॉलम्स की सिलेक्शन है। डॉक्टर शाह सलमास। तो रो भी आप इसी तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन सी रोज चाहिए, बाकी रोज आपको नहीं चाहिए। वो भी ये कामा से पहले जो ये सारे रो की सिलेक्शन है, उसके बाद जो भी हो रहा है वो आपके पास कॉलम वो हो रहा है।
ठीक है सर। ओके, डॉक्टर मजीद साहब आप रिपीट करेंगे सर, क्या हम मतलब आपके पास हो रहा है मेन चीज? डॉक्टर मजीद साहब आपका माइक म्यूट है, थोड़ा सा आप शेयर करेंगे आपके पास की क्या? ओके डॉक्टर शाह साहब आपको क्लियर है ये चीज जी सर, मुझे ये क्लियर है, यहाँ तक मुझे बिल्कुल क्लियर है। कि आपके पास आपको रैंडमली कॉलम कैसे चाहिए, एक सीरीज से कॉलम के आपको पास सिलेक्शन कैसे चाहिए आपको आपके पास है? जी सर, ये मुझे क्लियर है सर, ओके कि उसके जो बाद मुझे डिजायर्ड डेटा चाहिए वो किस तरह से मैं उसको वो कर सकती हूँ। हाँ, उसके बाद एक समरी फंक्शन आपके आर के अंदर है कि आप हम देखना चाह रहे हैं कि डेटे की जो हमारे मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं उनकी रेंज क्या है आपके पास। तो ये आपके पास देखें, कोई भी डाटा आपके पास वाटर कंटेंट है 28, मिनिमम वो कहता है आपके पास 28 है, फर्स्ट क्वार्टाइल 31 है, मीडियन आपके पास ये है, मीन आपके पास ये आ रहा है। ओके, तो हमने अब तक क्या देखा कि आपके पास डाटा आप इंपोर्ट कैसे करेंगे, डाटे को फ्रेम करेंगे, फिर डाटे को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। आपके पास स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में है। फिर आप देख हेड कमांड आपने देखी, टेल कमांड आपने देखी कि किस तरह आप हेड फर्स्ट 6 आपके पास रोज को देख सकते हैं अपने डाटे की, और 6 आपके पास एंड रो आप कैसे देख सकते हैं आपके पास। उसके बाद कॉलम्स नेम आप अपने डाटे के कैसे व्यू कर सकते हैं। फिर आपके पास कि आप सिलेक्शन ऑफ कॉलम कैसे कर सकते हैं, आपको कुछ कॉलम्स चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रैंडमली आपने कॉलम सिलेक्ट करने हैं वो आपका सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि मेन समरी आपके पास डाटा अंडरस्कोर फाइल हमारे पास है। तो इसमें जो हमारे पास डाटा आ रहा है, तो बाज़ औक़ात हमने देखना होता है कि जो डाटा हमारे पास यानी वाटर कंटेंट का आ रहा है 28 मिनिमम है और मैक्सिमम 54 है, तो ये लिटरेचर की रेंज के अंदर है या नहीं है। भास में इसमें कोई आउटलेयर्स तो नहीं है कि मतलब है कि डाटा कोई मतलब आपके पास लिटरेचर की रेट से आउट है, कोई बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है या कोई बहुत ज्यादा कम वैल्यूज आ रही है। तो इस तरह आपको ये आपके पास एक सिंगल लाइन कमांड में ये सारे पैरामीटर्स की आपको समरी शो करा देगा, और आप अपने लिटरेचर के या सीनियर्स के थीसिस के हवाले से आप उसमें देख सकते हैं कि आपके पास के डाटा आपके पास लिटरेचर की रेंज के अंदर है या नहीं है। तो ये आप सारे पैरामीटर्स की समरी व्यू कर सकते हैं। अगर अगर आप किसी एक पैरामीटर की समरी व्यू करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। डाटा अंडरस्कोर सॉइल है, मैं किसी एक वाटर कंटेंट में देखना चाहता हूँ तो ये मैं देख सकता हूँ आपके पास। ये देखें आपके पास एक वाटर कंटेंट के एक पैरामीटर्स की भी आप अपनी समरी व्यू कर सकते हैं, और ऑल पैरामीटर्स की भी आप समरी व्यू कर सकते हैं आपके पास। तो किसी की भी आप ये तमाम पैरामीटर्स की और सिंगल पैरामीटर की, वही मैंने बताया, इसकी यूजफुलनेस यही है कि आप अपने डाटे को लिटरेचर के साथ मैच कर सकते हैं, किसी अच्छे पेपर के साथ मैच कर रहे हैं कि जो मेरा डाटा आपके पास शो हो रहा है वो विद इन उस चीज में है या नहीं है आपके पास है। बात आप अंडरस्टैंड हुई बात आप लोगों को? जी सर। जी डॉक्टर रहील, मैंने क्या कहा आपके पास समरी की यूजफुलनेस क्या है आपके पास, ये देखें आराम से सिंगल आपके पास शीट में उस चीज की समरी आपका आर शो करा देता है। तो आप डाटे की वैल्यूज को और रेंज को आप चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा उस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। सर ये क्रॉस चेक भी हो सकता है? हाँ, ये क्रॉस चेक भी हो सकता है, आप एक्सेल में जाके आप देख सकते हैं मतलब, लेकिन ये ठीक है समरी आपके पास, ये बाई फंक्शन आपका समरी ठीक है। आप एक्सेल में भी किसी और फंक्शन में या किसी और सॉफ्टवेयर में भी आप क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, वो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये काफी हद तक ठीक है। ऑथेंटिसिटी होगी ना इसकी, तो मैं हाँ हाँ जी, हाँ जी, दैट्स ये आर वर्ल्ड रिकग्नाइज सॉफ्टवेयर है, और जो भी चीजें इसमें हैं मतलब वो काफी हद तक तो 99% सही है। सर, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था, वो थोड़ा सा इरेलेवेंट है। वो ये है कि स्टेटा पाकिस्तान में भी कोई करवाता है, मतलब स्टेटा के उस पे भी उस सॉफ्टवेयर पे मतलब
जी सर, स्टेटा एसटीएटी जो सॉफ्टवेयर ये इसके हवाले से, रिसर्च के हवाले से ही वो भी आई थिंक यूज होता है। तो वो पता नहीं कोई कौन यूज करता है, लेकिन हम तो मतलब 5-6 सालों से ये इसमें हमें आर सॉफ्टवेयर पे मजा आया तो हमने इसी को यूज कर रहे हैं। और इसको हम हमारे लिहाज से मतलब डाटा के ये पाइथन और आर दुनिया में ये दो बड़े सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं मतलब इस वक्त, जो इसको इजीली, तो हमने इसको यूजफुल पाया मैं और हमने स्टेटा बाकी। बता देती हूँ। स्टेटा जो है बायोलॉजिकल साइंस में यूज होने वाला एक सॉफ्टवेयर है, जिससे स्टैटिस्टिक और एनोवा और मल्टीवेरिएंट एनालिसिस आसानी से हो जाती है। एमएससी में हमने यूज किया था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें डिक्लाइन की तरफ चली गई, फिर एसपीएसएस आ गया, वो यूज होने लगा। हाँ एग्जैक्टली मतलब ठीक अभी है। भी कुछ मतलब जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह से मतलब हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज की बात की जाए, वहाँ पे रिसर्च के हवाले से जब उनको वो करना होता है तो वहाँ पे मतलब कुछ उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है। मैं हाँ तो अपनी बहुत से लोग, ऑर्गेनाइजेशन की बात हाँ मतलब बहुत सारे लोग ना जिसे एसपीएसएस की जगह स्टेटा यूज करते हैं। अमेरिकन सॉफ्टवेयर है ये, और इन्हीं 2002 या 2003 में ये लॉन्च हुआ था। जब मैं एमएससी में थी उस वक्त हमारी टीचर ने ना इस स्टेटा पे हमें स्टैट्स सिखाई थी। तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं, डेविएशन कैसे निकालते हैं, यूनिवेरिएंट एनालिसिस क्या होती है, मल्टीवेरिएंट एनालिसिस क्या होती है, वन वे नोवा क्या है, टू वे नोवा क्या है, वो सारा हमने उस पैटर्न पे किया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें ऑब्सलीट हो गई, फिर इस एसपीएसएस आ गया, हमने उस पर चीजें सीख ली। हाँ मतलब मुझे ये लगता है कि जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिर होता है तो फिर हम उससे थोड़ा सा उसकी तरफ जाते हैं जो हमारे लिए कंफर्ट भी हो, यस। कंफर्टेबल हो और यस। मतलब इजी टू अब हो देखिए, ना हाँ, कैरी। अब देखिए एसपीएसएस उसकी निस्बत बहुत मतलब आसान है। बहुत ही वो बहुत हाँ आसान आसान है, है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो ऑब्सलीट की तरफ चला गया। 2002 और 2003 में ये एक बहुत वैसा सॉफ्टवेयर कहलाता था, जिसके पास था वो अमीर था। मतलब मेरे हमारे टीचर ने अमेरिका से मिला के दिया था, तो वो हमें इंस्टॉल करवा दिया था, तो हम वो उन लिमिटेड लोगों में थे जिनके पास ये स्टेटा था। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि आपसे कांटेक्ट की जो आपको थोड़ा बहुत आता है वो आपसे गेन नहीं, किया मैंने तो जाए। 2003 में किया, उसके बाद वो ऑब्सलीट हो गया, मेरे पास तो है भी नहीं। खैर, फिर उसके बाद मैंने एसपीएसएस की ट्रेनिंग ले ली है, अच्छा, मैंने सारा थीसिस उस पे किया। एक्चुअली आज ही हमारी मीटिंग हो रही थी इंटरनली उसकी प्रोग्राम की, तो उसमें भी हमारी डायरेक्टर ने कहा कि जिस किसी को आता है तो वो दूसरों को भी ट्रेन करे या फिर इस पे वो करे अपनी नहीं, नॉलेज को। मैंने मैंने कहा कहा ना, मैंने तुम्हारी 2002 2003 में किया, तो शायद मैंने मुझे जहन में भी नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई। उस वक्त हमारे टीचर अमेरिका से वो सॉफ्टवेयर लेकर आए थे, और हम सबको सबके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करवा के उस पर ट्रेनिंग दी थी। और शायद उसमें कुछ सी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ चीजें करवाई थी, या पता हाँ नहीं हाँ सीएलएस से एग्जैक्टली करवाया ऐसा था। ही था वो पहले। हाँ ऐसा था ना, हाँ, तो बस अब थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, भूल गई मैं, बहुत पुरानी बात है। 2002-3 में मैंने नहीं एमएससी फिर भी किया था। माशाल्लाह से आपको याद है इतना हाँ, वो याद हमारे है। टीचर बहुत स्टैट्स के नाम में, बहुत स्टैट्स की दुनिया में बहुत बड़े नाम, डॉक्टर शाही शौकत, पिछले दिनों डेथ हुई उनकी, बहुत चैंपियन। ये ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, सही। ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको ये बता दूंगा। नहीं नहीं हाँ सर देखें, नहीं कुछ लोग देखें, टीचर्स अच्छा हो ना जिसने मतलब मेहनत की हुई होती है उस नॉलेज जो स्टूडेंट को डिलीवर किया हुआ होता है, तो वो उनके पास लॉन्ग लास्टिंग होता है और उनको याद होता है कि हाँ टीचर ने कैसे डिलीवर किया था और कॉन्सेप्ट किस तरह से हमें मतलब एक्सप्लेन किए थे, या हमें भी हमारे एंड पे भी रहता है। सो ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, तो ये देखिए आपके पास मैंने आपको समरी शो कराई थी कि सिंगल पैरामीटर की समरी आपके पास आप कैसे देख सकते हैं। आपके पास डाटा अंडरस्कोर वाटर कंटेंट की हम समरी देख रहे हैं कि 28 मिनिमम आ रहा है और 54 मैक्सिमम आ रहा है। मैंने बताया कि अब हमने लिटरेचर में जो इसको चेक किया, एज एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, कि हमने 28 आपके पास बहुत कम वैल्यूज है, लिटरेचर में जो शो हो रही है वो हमारे पास 30 से ऊपर की वैल्यूज शो हो रही है वाटर कंटेंट की इस कंडीशंस के अंदर। तो मैं चाह रहा हूँ अब मेरा जो डाटा है सबसेट, मैंने आपको एक कमांड बताई थी कि मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ डाटा अंडरस्कोर सॉइल 001 के नाम से। अब सबसेट के जरिए मैंने उसको कहा जी ये जो मेरा डाटा अंडरस्कोर सॉइल है, वाटर कंटेंट जो इसमें मुझे चाहिए वो मुझे 30 से ऊपर चाहिए, ग्रेटर देन 30। तो अब इसने ये एक नई फाइल बनाई, और इस नई फाइल में जब मैंने देखे पहले वाली समरी को देखा तो वो ये 28 से स्टार्ट हो रही थी। अब जो सेकंड समरी हमने शो कराई जिसमें हमने नई फाइल की, तो अब ये देखें वो मिनिमम को 30 पे लेकर आ गया। अब 28 वाली वो 30 से जितनी भी वैल्यूज नीचे थी आपके पास उसने वैल्यूज को खत्म कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था आउटलायर्स को आप इस तरह बाज चीजों में डील करते हैं, कोई ऑड वैल्यू आ गई तो आप चाहते हैं कि यहाँ से मेरा डाटा स्टार्ट हो, और बाजू का अब आगे उसको कह सकते हैं यहाँ पे एंड हो जाए, तो आप डाटे की रेंज दे सकते हो। आपको जैसे मतलब स्टूडेंट्स या करते हैं इसको डिलीट कर रहे हैं उसको एडिट कर रहे हैं अपनी ओरिजिनल शीट के अंदर,
तो ये करने की आपको जरूरत नहीं है। ओरिजिनल डाटा आपको फिर भी काम आ सकता है, फिर भी आप उसको रख सकते हैं आपके पास। तो ओरिजिनल डाटे को बिल्कुल छेड़े बगैर आपको अगर कोई चेंज थोड़ी बहुत करनी है या आपको कुछ वैल्यू से ऊपर डाटा देखना है तो आप कर सकते हैं। जैसे आप एज का एग्जांपल दे रही थी कि आपके पास सारी एजों का डाटा है बच्चों की, तो आप चाह रही हैं कि इस एज से ऊपर क्या मुझे डाटा अलग से चाहिए। डॉक्टर शास्ता, ये आपका क्वेश्चन यहाँ एड्रेस हो रहा है। तो इसमें आप उसको बता देंगी कि आर को कि ये जो इसमें मुझे जो एज चाहिए वो मोर देन 30 ईयर्स की चाहिए या 20 से 30 के दरमियान में चाहिए। तो ये आर के अंदर ऑपरेटर्स मौजूद हैं। तो ये आपके पास उस एज को या उस चीज को आपके पास ये कंट्रोल करेंगे आपके पास। तो इस तरह आप बगैर कोई एडिटिंग करिए या कोई फिल्टर उधर लगाए, कोई अलग शीट बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे ये सब को आम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, मेरा एक यहीं पे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी कि मुझे ये 30 मतलब मेरा ये ब्रेक हो गया यहाँ पे। अब मैं उसी डेटा में से डिफरेंट वैल्यूज को करना चाह रही हूँ, मतलब मैं कहती हूँ 45 वाले लैदा कर दे, 30 वाले लैदा कर दे, 60 वाले लैदा कर दे। तो मुझे हर बार न्यू कमांड देनी पड़ेगी या इसी में ही मैं आगे इसी इनको में लेस ऐड देन करके इसी बताती में जाऊँ? इसी में ऐड इसी में लगा ऐड देंगे, ऐड करते जाएंगे। इसी में ऐड लगा देंगे। कोई और चाहिए आपको, ऐड करती जाएंगी तो वो आपके पास वैसी चीज वो ऐड करता जाएगा। आपको और कमांड बार बार देने की जरूरत नहीं है। ये 30 पे चाहिए, ठीक है, आप सही, उसमें ऐड दैट्स लगा गुड सर, देंगे, बस वो यही मैं हाँ वो आ जाएंगे। डॉक्टर इशरत, आपको ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। क्या समझ में आया? मुझे ये समझ आया कि अगर फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू स्पेसिफाइड करनी है कि इससे ऊपर या नीचे का डाटा नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो 30 से लीस्ट वैल्यू ना हो, तो हमने उसको लेस देन 30 तक मेंशन कर दिया, आई मीन रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो वो सारा उसने 30 वाली वैल्यूज को ट्रेस आउट कर दिया कि कहाँ कहाँ पे जो है वो 30 के दरमियान वैल्यूज मौजूद हैं, 30 से 54 के दरमियान। ओके डॉक्टर मजीद साहब, आपने अंडरस्टैंड किया इस पॉइंट को? डॉक्टर मजीद साहब, आपका माइक म्यूट है सर, आप बताएंगे थोड़ा सा। सबसेट में आपको पहली चीज मैंने बता दी कि वैल्यूज के जरिए आप के वैल्यूज को रेंज को आप दे सकते हैं आपके पास। डॉक्टर रहील साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मुझे आ रही है। हाँ, तो क्या बताया सर मैंने आपको, ये सब सेटिंग में हम ये कैसे बाय वैल्यूज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं चीज को? इसमें जो हमारा अगर वैल्यू होगी, जो सी हम जो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से हमने हम्म ऐड करके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम इसमें 30 किया, इससे पहले 28, तो इसमें 30 से ऊपर जो भी डाटा होगा वो हमें अवेलेबल होगा, बाकी वो 30 से नीचे जो भी डाटा होगा उसे निगलेक्ट कर देगा। तो हम्म ऐसे ही हम तो जो भी यूज करना चाहें वो ये यूज करें। हाँ बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं आपके पास। तो ये आपके पास है। और एक चीज मैं आपको और सब सेटिंग में जरा दिखाता हूँ कि डाटा आपके पास सॉइल हमने ये कॉलम्स किया था, हमने फिर उसके लेवल्स देखे थे कि आपके पास डाटा सॉइल, आपके पास इरिगेशन। आपके अब हमारे पास क्या है, आपके पास हमारे पास ये डाटा है और हमारे पास इरिगेशन में बताया जैसे नॉर्मल और स्किप। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपके पास पंजाब सिंध सरहद सारों का डाटा मौजूद है। आप किसी एक पे काम करना चाहते हैं, किसी एक लेवल पे, बाकियों को आप नहीं करना चाहते, तो हम आपके पास इसको सॉइल मैं नॉर्मल इरिगेशन पे काम करना चाहता हूँ। आपके पास मुझे स्किप का डाटा नहीं चाहिए, वैसे मेरे पास डाटा पड़ा है मतलब, लेकिन मुझे उसको अभी यूज नहीं करना। डाटा सॉइल। तो अब आपके पास मुझे इरिगेशंस में जो हमारे मेरे पास है इरिगेशन, मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे नॉर्मल इरिगेशन चाहिए। सर इरिगेशन का ही नहीं। इरिगेशन के स्पेलिंग ठीक नहीं है, सही है आपके पास। ये देखें आर इन चीजों में सेंसिटिव है आपके पास, इसका आई हम स्किप कर गया।
उस वजह से वो उसको जी आपके पास आप देखें रन हो गया। अब आपके पास अब जो हमारे पास पहले डाटा है, आप इसको पहले डाटा मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इस डाटे में और उस चीज में आप फर्क बताएं कि क्या हो रहा है। ये आपके पास डाटा है, ये देखें आपके पास ये सारा डाटा शो हो रहा है आपके पास। इसमें देखें आपके पास नॉर्मल भी शो हो रहा है, स्किप भी शो हो रहा है, सारी चीजें आपके पास दोनों चीजें शो हो रही हैं। अब जो दूसरी फाइल हमने बनाई है आपके पास, उसमें देखें आपके पास क्या हो रहा है। अब ये दूसरी फाइल में देखिए आपके पास क्या फर्क हो रहा है। आपके पास इरिगेशन के अंदर उसने स्किप की वैल्यू खत्म कर दी है, सारा आपके पास नॉर्मल का डाटा शो हो रहा है। जबकि पहले वाली फाइल में आपके पास क्या था, ये देखिए नॉर्मल और स्किप दोनों आ रहे थे आपके पास। अंडरस्टैंड किया आपने इस बात को? सर खत्म कैसे किया आपने? ये कमांड्स के थ्रू, ये देखिए ये जो मैंने सब सेटिंग में उसको कहा, ये देखिए मैंने ये डाटा अंडरस्कोर नॉर्मल की एक अलग फाइल बनाई है, मैंने सब सेट के जरिए उसको कहा है कि मुझे जो डाटा अंडरस्कोर सॉइल वाली फाइल है, इसमें से मुझे जस्ट इरिगेशन में से मुझे नॉर्मल ए डबल इक्वल लगा के मैंने उसके कामा के अंदर नॉर्मल इरिगेशन, ये जो हमारे दो लेवल्स यहाँ पे शो हो रहे थे, उसको मैंने कहा जी सिर्फ मुझे नॉर्मल का डाटा चाहिए, स्किप का डाटा पे मैंने काम नहीं करना। तो ये आपके पास, तो इस तरह आपके पास उसने सिर्फ नॉर्मल के डाटे पे आप मैं स्टैट लगाऊं, इसके ग्राफ बनाऊं, मुझे मतलब बाकी वो स्किप का डाटा इस जो नई फाइल बनी है इसमें सिर्फ मतलब एक लेवल मौजूद है। मैं आपको जैसे बताया सिंध बलूचिस्तान सरहद वगैरह का आपका डाटा है। आप किसी एक सूबे का आपके पास, जैसे वो डॉक्टर शाइस्ता का क्वेश्चन था कि मेल और फीमेल का डाटा है, अब उसमें से आप चाह रहे हैं कि मेल का डाटा मैं अलहदा कर दूं और फीमेल का मैं डाटा अलहदा कर दूं ताकि उस पर वर्किंग कर सकूं या उस चीज़ों पे। तो इस तरह आप उसको कह देंगे कि ये आपके पास जेंडर है, जेंडर के अंदर मुझे मेल सिर्फ डाटा चाहिए, तो वो आर आपकी जो फाइल नई बनाएगा उसमें सिर्फ एक मेल का डाटा होगा, या दूसरी फाइल बनाएंगे जिसमें फीमेल का डाटा होगा। तो यहाँ आप उसको अलहदा से बता सकते हैं आपके पास। डॉक्टर शाइस्ता अंडरस्टैंड हुई आपको बात? हेलो जी डॉक्टर इशरत, आपको क्लियर हुआ पॉइंट? जी सर क्लियर हो गया। ओके जी सर, मुझे हो गई है। ओके डॉक्टर मजीद साहब, राहील साहब। जी सर, मुझे ओके, तो ये आपके पास बस आप आज के लिए आपके लिए यही काफ़ी है। ये चीज़ें आपको मैं नोट्स में भी और ये आपके पास लेक्चर रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप ये प्रैक्टिस करें। कल डॉक्टर इशरत कह रही थी कि कल शबान की मतलब 15 शबान की वो छुट्टी है, परसों हम इसी से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ, थोड़ा सा मतलब ये डाटा एनालिसिस पे हम थोड़ा एक दिन और लगाएंगे, उसके बाद हम स्टैट और ग्राफिक्स पे जाएंगे। थोड़ा सा आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। आप डाटा, तो ये मैं आपको रिपीट करता हूँ, डाटा आपके पास इंपोर्ट किया हमने, डाटा फ्रेम किया, डाटा स्ट्रक्चर बनाया, फिर हेड कमांड को देखा, फिर टेल कमांड को देखा, फिर कॉलम्स नेम को हमने देखा, फिर लेवल आप कैसे देख सकते हैं, फिर आप सब सेटिंग क्या आप कॉलम्स को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपके पास आपको स्पेसिफिक कॉलम चाहिए डाटा में से वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने सब सेटिंग देखी जिसमें आप वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ से यहाँ तक आपको डाटा चाहिए, और ये आप किसी अपने लेवल्स में से एक लेवल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इरिगेशन नॉर्मल और स्किप इरिगेशन का डाटा चाहिए, या आप जेंडर्स में है तो मेल और फीमेल का डाटा आपको अलहदा करना है। तो ये सारी नोट्सों में भी मैंने जो शेयर किया है आपके पास, उसमें भी ये सारी चीज़। डॉक्टर शाइस्ता आप वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने लिंक भेजा है वो आप ज्वाइन कर लें, सारा मटेरियल मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा उसमें आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मजीद साहब, क्या हाल है सर? आज आप थोड़ा सा सर मिस वो रहे। थोड़ा सा बिजी हो गया, एक वो कॉल आ गई थी, तो लास्ट सर मैंने स्टेप कर ली है। रिपीट कर दें। जी सर, लास्ट मैंने स्टेप कर ली है। आप प्लीज स्पीच जो प्रीवियस है वो शेयर कर दें। हाँ वो मैं शेयर कर दूंगा। जी सब हमने ये देखा लास्ट कि स्टेप जी जी लास्ट में ये बता रहा था, ये आपके पास कॉलम्स आपने देख लिए, उसके बाद जो लेवल्स वगैरह थे आपके पास, तो हमने लेवल्स में हमारे पास नॉर्मल और स्किप आपके पास था,
तो हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हमें नॉर्मल का डाटा चाहिए आपके पास। तो ये मैंने डाटा अंडरस्कोर नॉर्मल के लिए एक अलग फाइल बनाई, सब सेट के थ्रू फिर हमने डाटा फाइल का नाम रखा, और इरिगेशन के अंदर मैंने उसको डबल इक्वल करके आपको सिर्फ नॉर्मल का आपको डाटा चाहिए, नहीं दोनों लेवल्स में से सिर्फ आपको एक का लेवल चाहिए। तो इस तरह आप आर को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कौन सा डाटा चाहिए आपको, यानी दोनों लेवल में से एक का लेवल आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके पास। तो ये सारी चीजें आपके पास मैंने बताया कि आज हमने डाटा इंपोर्ट कैसे करते हैं, डाटे को फ्रेम कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, कॉलम्स नेम आप कैसे देख सकते हैं, लेवल्स आप कैसे देख सकते हैं, उसके बाद सब सेटिंग आपने कॉलम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, सब सेटिंग में आप वैल्यूज के थ्रू और ये आपके पास लेवल्स के थ्रू कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप इसकी जरा प्रैक्टिस करें आज के दिन। कल शोबान 15 शोबान की छुट्टी है, परसों इंशाल्लाह हम यहाँ से दोबारा डाटा एनालिसिस पे एक दिन और लगाएंगे, उसके बाद हम स्टैट और ग्राफिक्स पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें इन सारी चीज़ें। मैं ये लेक्चर भी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा और ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर हो जाएंगी। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें आपके पास।